It was days after a UPSC aspirant died of electrocution on a waterlogged street in Delhi's Patel Nagar. Another tragedy has hit the national capital. 3 students have lost their lives at a coaching center in Old Ranjendra Nagar area after rains led to flooding of the basement. As per reports, 1 more student was missing. The fire department and NDRF teams rushed to the spot to conduct the rescue operation. Delhi Minister Atishi wrote to the Chief Secretary directing a magisterial inquiry into the incident and seeking a report within 24 hours. She also called for the strongest possible action against those who were found responsible for the incident. अब जांच के आदेश दे दिए गवर्नमेंट ने होगी क्योंकि बारिश बहुत हैवी रेन हुई थी और बारिश में पानी भरता है। यहाँ वहाँ पे मैं एक देख रहा था अभी कि बताया मेरे को एक लड़के ने वहाँ पे कि सर पानी हर बार बढ़ता है पर इस बार पता नहीं अचानक इतनी तेजी से पानी भरा कि हमें बाहर निकलने का समय नहीं निकल पाया, मतलब नहीं मिल पाया, हम बाहर नहीं निकल पाए। 30 बच्चे करीब बता रहे थे वो लोग थे, काफी लोग निकल गए, 2-3 बच्चे जो रह गए क्योंकि पानी वो ये बता रहे पानी भरने में 5 मिनट से ज्यादा का टाइम लगा नहीं। तो पानी कैसे इतनी तेजी से भर गया, इतनी तेज बारिश हुई है, सारा पानी उधर कैसे आ गया, ये एक जांच का विषय हो सकता है। Times Now has accessed details of the sequence of events. Sources say that after incessant rains between 6 p.m. to 7 p.m., the fire department received a call about waterlogging in the basement of the coaching institute. 5 fire tenders and NDRF teams along with divers were rushed to the spot. However, the cause of the flooding in the basement could not be immediately ascertained. Police suspect that the coaching classes functioning from basements had violated safety norms. Times Now's Priyank Tripathi had also reached the spot as the rescue operation was still underway. In the last 4 hours, what we have witnessed that this water is being pumped out from the basement. This is the location from where we are reporting. This is the institute which is known as the Rao Coaching Institute, where the UPS parents have been preparing since many months. And approximately around 7 p.m., there was a call which was given to the fire department and the Delhi police regarding a casualty which has happened here. Following to which the Delhi police forces, NDRF and the fire department officials moved to their location. We are talking about Old Ranjendra Nagar, which is a very prominent location here in the national capital, where there are multiple IPS and UPSC preparation institutes which are situated. But the rescue team is still trying to work hard to find those bodies which are still missing. Approximately what we got to know that there were 35 to 40 students who had gone to the basement area where they were studying inside the library, and suddenly when the water entered in, they could not save their life. The big question is that who should be held accountable for this? The big question is that how is it possible this area could not be attended? We are joined by the locals. Sir, this is a very prominent area right next to the metro station. It was very well known fact that the waterlogging do happen. Why was the authorities sleeping? Why were they sleeping? This everything is it's very sad. Even I am not able to speak anything. राजनीति नहीं करने का टाइम है। इस वक्त आप देख रहे हैं एनडीआरएफ की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम लगी पड़ी है पिछले 4 घंटे से। ये आम लोगों का रास्ता है, दिन भर भीड़ रहती है, रात भी भीड़ रहती है, पानी भरता किसी को सोधी नहीं थी। आम आदमी पार्टी के साथ आम आदमी की सरकार दिल्ली में है, एमसीडी में यहाँ के जो आम आदमी पार्टी के प्रभारी है दुर्गेश पाठक, उनका काम है। आम आदमी पार्टी की काउंसिलर आरती चावला, उनका काम है। मैं किसी को जिम्मेदार नहीं कह रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ सबसे कि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो। पिछले residents are worried that this kind of casualty should not be reported once again. But the fact of the matter is that so much of preparation, this kind of casualty has happened. The Delhi police team is also here on the ground. They have taken assistance from the NDRF and the fire department. Why was the authorities sleeping? Why were they sleeping? This everything is it's very sad. Even I am not able to speak anything. देश के दो, कैन आई स्पीक इन हिंदी? या श्योर। देश के 2 भविष्य की जान चली गई है। आप राजनीति नहीं करने का टाइम है। इस वक्त आप देख रहे हैं एनडीआरएफ की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम लगी पड़ी है पिछले 4 घंटे से। आम आदमी पार्टी के साथ आम आदमी की सरकार दिल्ली में है, एमसीडी में यहाँ के जो आम आदमी पार्टी के प्रभारी है दुर्गेश पाठक, उनका काम है। आम आदमी पार्टी की काउंसिलर आरती चावला, उनका काम है। वहाँ 2 मौतें हो गई। मैं किसी को जिम्मेदार नहीं कह रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ सबसे कि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो।
Viewers, Delhi BJP leaders rushed to the spot as soon as the news about the incident spread. They held the Kejriwal government and local Aam Aadmi Party MLA Durgesh Pathak responsible for the deaths, saying the locals repeatedly demanded that desilting work should be done, but the government did nothing. They asserted that it's not an accident but murder. ये हादसा नहीं, ये आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया हत्या है। ये आपराधिक लापरवाही है, जिसके चलते आज राजेंद्र नगर में जिस प्रकार से बेसमेंट में पानी भरने से एक प्रसिद्ध कोचिंग क्लासेस में वहां पर कम से कम 2 बच्चियों की जान चली गई है, ये खबर सामने आ रही है। वहां पर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के और अन्य लोग उन लोगों को बचाने के लिए लगे हुए हैं, पर सवाल ये पैदा होता है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मृत्यु के पूरी तरह जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी हैं। हम कटाक्ष नहीं कर रहे, सत्ता पक्ष की जवाबदेही बनती है। 1 दशक से, पिछले 10 सालों से यहाँ पर सत्ता भोग रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे। दिल्ली के राजेंद्र नगर में दिल दहला देने वाली अभी तस्वीरें देख रहे हैं। किस तरह से जल भराव के कारण बेसमेंट में पानी भरता है और पिछले 5 दिनों में अब तक 5 मौतें इस तरह से हो चुकी हैं, जो बरसात में कभी इलेक्ट्रिक का शॉक लगने से, करंट लगने से, कभी बेसमेंट में करंट लगने से, और इस तरह से बच्चे जो देश के कोने कोने से पढ़ने आए हैं, किस तरह से दिल दहला देने वाली वो फोटो और वीडियो है जो उनके मारे जाने के सामने दिख रही है। और ये नमूना क्या है? ये आम आदमी पार्टी का दिल्ली का लूट कूट और करप्शन का नमूना है। किस तरह से दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनके साथियों ने, चाहे आतिशी जी हों, चाहे बाकी मंत्री हों, चाहे कॉरपोरेशन हो, किस तरह नालों की सफाई का सारा पैसा खा गए, लूटकर दिल्ली को खा गए। 1 घंटा अगर बरसात होती है, 10 मिनट भी अगर बरसात होती है तो दिल्ली भर जाती है, लोगों की बेसमेंट भर जाती है, नंगी तारों से लोगों को करंट लग रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। और अभी आतिशी कह रही है मैं इंक्वायरी करा रही हूं। इंक्वायरी तो अरविंद केजरीवाल जी की और मंत्रियों की कराइए, जो लूट कर खा गए दिल्ली को। कहां गया वो सारा पैसा जो दिल्ली के नालों की सफाई करने का था? अब तो दिल्ली सरकार के साथ कॉरपोरेशन भी आपकी है, बहाने भी नहीं बचे अब तो आपके पास। और अब कहते हो मैंने चीफ सेक्रेटरी को कह दिया इंक्वायरी करो। आतिशी जी, इंक्वायरी नहीं, तुम इस कत्लेआम के जिम्मेवार हो। ये किसी की मौत ट्रेजेडी से हुई जो, उसकी जिम्मेवार आप हो। ये कत्ल है और ये मर्डर है और ये आपकी करप्शन के कारण हुआ मर्डर है। अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का इससे जीता जागता उदाहरण नहीं हो सकता। पिछले 15 दिनों से यहाँ की स्थानीय जनता पीछे खड़ी है। चिल्ला चिल्ला के यहाँ के विधायक दुर्गेश पाठक को कह रही थी नालों की सफाई करा दो, नालों की सफाई करा दो, लेकिन ये भ्रष्टाचारी तंत्र पूरा का पूरा इन बच्चों की जिंदगी ले लिया। यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे बच्चे, लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, पानी भर गया, करंट के बारे निकल नहीं पाए। और ये क्या नालों की सफाई नहीं करा सकते? 2.5 फुट सड़कों पे पानी है 1 घंटे की बारिश में। ये दिल्ली है। दिल्ली को अपनी लालच में और अपने पैसे की भूख में अरविंद केजरीवाल ने लूट कर रख दिया। दुखद है। एक अभी और पुलिस, अभी एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है और हम यहाँ खड़े हैं, लेकिन ये इनको इसकी ये हत्या है, ये दुर्घटना नहीं है, हत्या है। इनकी हत्या की जिम्मेदारी इनको लेनी पड़ेगी। ये कह रहे हैं कि राजनीति करने का समय नहीं है। राजनीति ये कर रहे हैं ना, इनको, इनका काम था नालों की सफाई कराना, क्यों नहीं कराई? उसमें किसने कहा था राजनीति करने के लिए? लेकिन पैसे कमाने के लिए इनको राजनीति नहीं दिखाई देती। Now, under attack from the BJP, Aam Aadmi Party MLA Durgesh Pathak sought to pin the blame on the BJP, asking why wasn't the drainage system fixed in the last 15 years when there was a BJP councillor in the area. देखिए, जैसे इस घटनाक्रम का पता लगा, दुर्गेश पाठक जी यहाँ के विधायक और मैं उसी समय यहाँ पहुँच गए मौके पर, और पता लगा है सभी सूत्रों से कि एक ड्रेन या कोई सीवर एकदम से फ्लैश फ्लड की तरह फट गया और वो बेसमेंट में पानी भर गया। अभी एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है और अभी पूरी जांच चल रही है, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर हैं और अभी कुछ ही समय में हर चीज की क्लैरिटी हो जाएगी। और एक बात और मैं आपको कहना चाहती हूँ, किसी भी विभाग का, स्पेशली जो एमसीडी का, अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा तो उस पर पूरी तरह से एक्शन लिया जाएगा।